Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover a very famous poem Kubla Khan written by romantic era writer S.T. Coleridge, सैमुअल टेलर कॉलरिज। इन्हीं की एक बहुत फेमस पोम है डिजेक्शन एंड ऑड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट अस बिगिन द वीडियो नाउ। Please do not forget to share and subscribe the channel. Let us begin the video now. Let us talk about Kubla Khan. Kubla Khan or a vision in a dream, a fragment. Fragment का मतलब होता है किसी चीज का एक हिस्सा। इसको हम पोएट्री ना कहकर एक हिस्सा क्यों कह रहे हैं, उसके बारे में हम एक स्टोरी जानेंगे इसी पोएट्री से रिलेटेड। अभी जानते हैं इस पोएट्री के बारे में कब लिखी गई थी और कब पब्लिश हुई थी। इट वॉज रिटन इन 1797 एंड पब्लिश्ड इन 1816। एस.टी. कॉलरिज एक इंग्लिश पोएट थे, बहुत ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक भी थे, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन, हु विद हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, अपने दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने ही रोमांटिक एरा की शुरुआत की थी बाय द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798। इस पोएट्री के लिखे जाने के पीछे एक कहानी है और एक बहुत ही बड़ा रोल है ओपियम का। जी हाँ, ओपियम, जिसको कि हम हिंदी में अफीम कहते हैं। Coleridge was widely known to have been a regular user of opium as a relaxant, pain-killing, antidepressant and treatment for numerous health concern. काफ़ी चीज़ों के लिए Coleridge अफीम का, ओपियम का इस्तेमाल किया करते थे। He has written Kubla Khan under the drug's influence, but the degree to which he used the drug as a creative enhancement is not precise. हम नहीं जानते कितना amount of opium consume किया गया था, but we know that this poetry was written under the impression of opium. Coleridge जी ने खुद ही इस बात को माना है later on that poem had come to him while under the influence of opium, but that his creative vision was interrupted by a man from the village of Porlock. Porlock नाम के एक विलेज से एक पर्सन आया और इनकी सारी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर दिया। Porlock is a coastal village in Somerset, England. So this person knocked on his door about some business, and by the time their exchange had ended, almost an hour later, the vision had fled. कॉलरिज जी को इस पोएट्री से रिलेटेड सपना आया और उन्होंने सोचा कि लगभग 200-300 लाइंस लिखेंगे, लेकिन किसी पर्सन ने आकर उनको डिस्टर्ब कर दिया। एंड व्हेन कॉलरिज एक घंटे के बाद व्हेन कॉलरिज रिटर्न टू द पोम, ही कुड नॉट रिकॉर्ड everything. He could not recall everything that he had planned for earlier. The poem could not be completed according to its original 200-300 lines plan, as the interruption caused him to forget the lines. Many people, many scholars, many academics may have argued about the reliability of the story, but this is the story that has been prevailing since ages. इस पोएट्री का एक और सोर्स क्या है? एक और राइटर हैं सैमुअल पर्चर्स, जो कि अपने ट्रैवलॉग्स के लिए फेमस थे। उनकी एक बुक पर्चर्स हिज पिलग्रिमेज पढ़ रहे थे एस.टी. कॉलरिज जी, जब उनके दिमाग में कुबला खान के बारे में कुछ आइडियाज आए। सो द सोर्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ पोम कुबला खान केम टू हिम थ्रू सैमुअल पर्चर्स बुक पर्चर्स हिज पिलग्रिमेज, और उन्होंने बाद में 1816 में बताया भी है कि व्हेन ही वाज रीडिंग इट ही फेल अस्लीप। ही वाज रीडिंग दिस बुक पर्चर्स हिज पिलग्रिमेज और उनको नींद आ गई और ये वर्ड्स उनके दिमाग में रह गए। इन ज़ेनेडू डिड कुबलाई खान build a stately palace stayed in his head. So these words stayed in his head while he was about to write this poetry about this king Kubla Khan. आइए जानते हैं कुबला खान जी थे कौन। Kubla Khan was a Mongolian general and statesman who was the grandson and greatest successor of Genghis Khan, जिनको कि famously चंगेज खान भी बोला जाता है, the founder and the first great Khan of Mongol Empire. He was the fifth emperor. Kubla Khan was the fifth emperor of this dynasty, and he completed the conquest of China begun by Genghis Khan and became the first Yuan ruler of all the China. हम इस पोएट्री की लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी पोएट्री को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं और एक चीज़ अपने जहन में रखते हैं, एक चीज़ अपने ध्यान में रखते हैं कि ये पोएट्री किसी का ड्रीम है। कुबला खान ऑल्दो एक रियल फिगर है, लेकिन जो भी इस पोएट्री में डिस्क्राइब्ड है दैट इज़ द विजन ऑफ एस.टी. कॉलरिज।
कुबला खान, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अब हम। द पोम डिस्क्राइब्स ज़ेनेडू द पैलेस ऑफ कुबला खान। हमारे एस टी कॉलरेज जी ने अपने सपने में पैलेस देखा होगा मंगोल एम्पायर कुबला खान का, जो कि ग्रैंडसन थे चेंगिस खान के। द पोम स्पीकर स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग द सेटिंग ऑफ एम्परर्स पैलेस विच ही कॉल्स अ प्लेजर डोम। He tells us about the river Elf. उसके बाद वो वहाँ की एक रिवर की बात करते हैं that runs across the land and then flows through some underground caves into the sea. He also tells us about the fertile land that surrounds the palace, and the nearby area is covered in streams, sweet-smelling trees and beautiful forests. तो आसपास का environment describe किया जाता है. He has described Xanadu as a palace, as a place of beauty, pleasure and violence, and the speaker suggests that these qualities are all deeply intertwined, and in the first stanza announces a desire to build a pleasure dome, pleasure palace of the speaker's own through song. The poem is one of Coleridge's most famous and has been interpreted in many different ways. Basically तो यही है कि एक ड्रीम को डिस्क्राइब किया गया, उस ड्रीम में क्या क्या सीनिक ब्यूटी देखी है, किस तरीके से इस किंग को देखा है हमारे कॉलरेज जी ने, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। आइए जानते हैं पहली 11 लाइंस के बारे में, द फर्स्ट 11 लाइंस। आई विल नॉट गो वर्ड टू वर्ड, मैं आपको कुछ लाइंस की मीनिंग्स बताती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन पर्टिकुलर लाइंस का मीनिंग। एक प्लेस की बात की गई है, एक पैलेस की बात की गई है। इन अ प्लेस कॉल्ड ज़ेनेडू, द मंगोलियन लीडर कुबला खान ordered his servants to construct an impressive dome building for pleasure and recreation on the banks of holy river Elfa. ऐसा लगता है कि पोएट ने अपने सपने में देखा कि किंग है वहां पर, और किंग अपने कुछ लोगों को आदेश दे रहे हैं कि मेरे लिए एक ब्यूटीफुल सा पैलेस बनवाया जाए नियर बाय दिस होली रिवर। इसके बाद रिवर एल्फ के बारे में थोड़ी सी और बात की जाती है। रिवर रैन थ्रू अ सीरीज ऑफ केव्स, कुछ गुफाओं से होकर गुजरी, सो वास्ट दैट नो वन कुड मेजर देम, एंड देन डाउन इनटू एन अंडरग्राउंड ओशन, और जाकर एक ओशन में मिल गई, एक सी में मिल गई। सो दे क्रिएटेड अ स्पेस विथ 10 miles ऑफ फर्टाइल अर्थ। ट्वाइस 5 mile लिखा ना, इसका मतलब ये 10 miles। तो 10 miles की कुछ सराउंडिंग्स बनाई गई वॉल्स और टॉवर्स के रूप में, एंड इन इट देयर वर गार्डन्स, बहुत सारे गार्डन्स थे वहाँ पर, जहाँ पर सनी लिटिल स्ट्रीम्स थे, फ्रेग्रेंट ट्रीज थे, एंड ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक सनी क्लियरिंग बना दी गई है इन द मिडल ऑफ द ओल्ड फॉरेस्ट। इसके बाद वहाँ की वैलीज के बारे में बात की जाती है। चैज़्म इज वैली, but oh, how beautiful was that deep, impressive valley that cut through the green hill between the cedar trees. It was such a wild place. तो इस प्लेस के बारे में बात करते हैं कि कितनी सुंदर वो वैली रही थी, जो कि पेड़ों के बीच में से होते हुए गुजर रही थी। A place so sacred and captivating that you might expect it to be haunted by a woman crying out for her satanic lover beneath the crescent moon. ऐसा लग रहा था कि ये प्लेस इतना ज़्यादा सेक्रेड है, इतना ज़्यादा पवित्र है कि आप वेनिंग मून के सामने एक फीमेल को इमेजिन कर रहे हो जो कि अपने किसी लवर का इंतज़ार कर रही है। एंड इस वैली के बाहर की बात की जाती है, एंड आउट ऑफ दिस वैली विद इट्स एंडलेसली चर्निंग रिवर अ फाउंटेन वुड समटाइम्स इरप्ट। ऐसा इमेजिन किया जा रहा है कि वैली के बाहर एक फाउंटेन एकदम से इरप्ट हो जाएगा। एज दो द ग्राउंड इटसेल्फ वाज ब्रीदिंग हार्ड, जैसे कि ग्राउंड बहुत ही मुश्किल से सांस ले रहा हो, एकदम से उसमें से एक फाउंटेन इरप्ट हो जाएगा। और ये फाउंटेन सिर्फ वाटर ही नहीं फ्लाई करेगा हवा में, दिस फाउंटेन वुड सेंड डेब्रीज ऑफ रॉक्स फ्लाइंग इनटू द एयर लाइक ग्रेन स्कैटर्ड एज इट बीइंग हार्वेस्टेड। जैसे हम ग्रेन्स यहाँ वहाँ फैला देते हैं ना जब ग्रेन्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं, शेफी ग्रेन, उसी तरीके से ये फाउंटेन अपने अंदर से कुछ पत्थरों को, कुछ डेब्रीज को निकाल कर हवा में यहाँ वहाँ फैला देगा। चाहता है कि जब इस फाउंटेन में से पत्थर निकल रहे होंगे, यहाँ वहाँ डांस कर रहे होंगे, उसी वक्त इट विल फ्लंग अप momentarily the sacred river as well. As it threw up these rocks, the fountain would also briefly send the water of the holy river bursting up into the air. और वो होली रिवर 5 माइल चलेगी अपने लेजी मूड में थ्रू वुड्स एंड फील्ड्स बिफोर इट रीच द एक्सट्रीमली डीप केव्स एंड सैंक इन अ बर्स्ट इनटू द मच क्वाइटर
ocean. धीरे धीरे रिवर चलकर एक ओशन में मर्ज हो जाएगी एंड इट विल ट्रेवल थ्रू many forests. We can see here a supernatural kind of element. यहाँ पर एक supernatural element दिखाया गया है कि एक king है, उसके आसपास का environment किस तरीके का है, किस तरीके से eruption of land हो रहा है, और उसके बाद बताया जाता है कि एक prophecy होती है. prophecy मतलब भविष्यवाणी, kind of you can imagine आकाशवाणी. And with this tumult, Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. And in the rushing waters of the caves, Kubla Khan heard the voices of his ancestors predicting that some war would arrive. All the supernatural elements are described here along with nature's description with good imagery and one prophecy as well. तो इस पोएट्री को आप एक ड्रीम की तरह इमेजिन करिए. कुछ सीन्स हैं ड्रीम के जो हमें बताए जा रहे हैं. नेक्स्ट लाइन्स देखिए. द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स. वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन्स एंड द केव्स. इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेजर डोम विद केव्ड आइज. यहाँ पर दिखाया गया कि कुबला खान का जो पैलेस है उसकी शेडो रिवर के बीच में पड़ रही है. द शेडो ऑफ कुबला खान्स प्लेजर पैलेस वॉज रिफ्लेक्टेड बाय द वेव्स and you could hear the sound of the fountain also mingling with that of the water and rushing through caves. This was a truly, completely a miraculous place. Kubla Khan's pleasure palace with both sunny and icy caves. Sunny और icy caves एक साथ. That means it itself is a paradox. So these above lines could be used in speech to tell about some past adventure or expedition to some wonderland. ऐसा लग रहा है कि हमारा स्पीकर किसी वंडरलैंड के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर आइसी केव्स भी हैं और वहाँ पर प्लेजर डोम भी है जो कि सनी है. सनी एंड आइसी एक साथ. इसके बाद हमें एक गर्ल के बारे में बताया जाता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है, ड्यूलसिमर नाम का. अ डेमसेल विद अ ड्यूलसिमर. इन अ विजन वंस आई सॉ इट वॉज एन एबिसिनियन मेड. एबिसिनिया को अब इथियोपिया कहते हैं, तो दिस गर्ल्स बिकम्स इथियोपियन नाउ. एंड ऑन हर ड्यूलसिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा. माउंट अबोरा के बारे में कुछ गाना गा रही थी वो लड़की. सम क्रिटिक्स सजेस्ट दैट माउंट अबोरा इज कॉलरेज नेम फॉर माउंट अमारा. माउंट अमारा नाम का माउंटेन डिस्क्राइब किया गया जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में. उसके बाद हमारे पोएट कहते हैं कि काश मैं उस गर्ल के उस म्यूजिक को रिक्रिएट कर पाता. तो वही बात करते हैं वो. कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग. So he says कि if I could recreate within myself the sound of her instrument and her song, it would bring me so much joy that I would build Kubla Khan's pleasure palace in the sky above me, the sun-filled dome, those caves full of ice. तो हमारे स्पीकर जी कहते हैं कि अगर मैं भी इस लड़की के इस गाने को रिक्रिएट कर पाता तो मैं भी बहुत पावरफुल बन जाता और मैं भी कुबला खान का स्टेटस हासिल कर लेता. और पोएट एंड करते हैं अपनी इस बात को ये कहते हुए कि इफ आई कुड रिकैप्चर दैट ब्यूटिफुल साउंड ऑफ द वुमेन सिंगिंग, ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ द वुमेन सिंगिंग, ही वुड बी इंस्पायर्ड टू बिल्ड द लैंड शी sang of, which he described earlier in the poem. तो उसके बाद वो कहते हैं कि वही सारा लैंड, केव्स ऑफ आइस, वो सब कुछ मैं क्रिएट कर पाता अगर इस गर्ल का म्यूजिक मुझे थोड़ी सी और पावर देता. हमारे स्पीकर उस गर्ल के गाने से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि उस गाने को डिवाइन स्टेटस दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर मुझे उसी तरीके का गाना आ जाता तो सब लोग मुझे डिवाइन समझते. एवरीवन हु हर्ड द सॉन्ग वुड लुक अप एंड सी व्हाट आई हैड बिल्ट एंड दे वुड क्राई आउट. तो मैं एक बहुत ही पिछली लाइन्स में हमने पढ़ा कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही पावरफुल बन जाता और मैं एक प्लेजर डोम बनवा पाता कुबला खान की तरह. एंड ऑल हु हर्ड शुड see them there, all should cry, beware, beware, his flashing eyes, his floating hair. Everyone who heard the song would look up and see what I had built, and they would cry out, be careful, look at his wild eyes and crazy hair. और वो लोग क्या करते उसके बाद कि उसके आसपास एक सर्कल बना लेते. वो पर्सन इतना ज़्यादा डिवाइन लग रहा होता कि उसके आसपास 3 बार एक सर्कल बना लेते, उसके क्लोज नहीं आते, अपने आप को उसके पास आने से प्रोटेक्ट करते. So he is talking about the power of this divine music and says कि
His divine condition would frighten the people so much that they would guard themselves against coming into close contact with him. In order to save themselves from being infected by his magical charm, they would confine him with a magical circle, within a magical circle 3 times. तो 3 बार एक magical circle बना दिया जाएगा जिससे कि हमारे स्पीकर किसी के पास ना जा सकें, क्योंकि at present वो इतने डिवाइन लग रहे हैं कि वो लोगों को डरा पा रहे हैं. And in the end he says he has eaten the food of the gods and drunk the milk of heaven. हनी ड्यू उन्होंने यूज किया ना. The poet has tasted nectar of divine poetic inspiration. In order to save themselves from the effect of his poem, his charm, people would shut their eyes. Towards the end of the poem, it becomes very much personal and we can say mysterious as well, as the speaker describes past visions he had. This brings him to a final image of a terrifying figure with flashing eyes, you can say. और अंत होते होते इस पोएट्री का लोग उनसे डरने लगते हैं और ऐसा लगता है कि इस स्पीकर ने पैराडाइज का मिल्क पिया है, हनी ड्यू पिया है, जिससे कि ये पोएट बहुत ही ज़्यादा डिवाइन हो गया और एक्सट्रीम डिवाइन की कंडीशन बेसिकली एक तरीके से फ्रेंजी हो जाती है. लोग उनसे इतना डर रहे हैं कि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और उनके आसपास 3 बार सर्कल्स बना दिए हैं जिससे कि वो अपनी इस डिवाइनिटी के स्फीयर से बाहर ना आ पाए. अब जानते हैं इस पोएट्री की थीम्स क्या हैं. इमेजिनेशन एंड नेचर. रोमांटिक पोएट्रीज की कैटेगरी में तो ये आती ही है और रोमांटिक पोएट्रीज के ही 2 मेजर फीचर्स हैं, इमेजिनेशन एंड nature. As a romantic poet, Coleridge placed a strong emphasis on the power of imagination in this poetry. The poem reveals that the speaker has been imagining what the palace of Xanadu would look like. रियलिटी में पैलेस ऑफ ज़ेनिडू कैसा दिखेगा उनकी इमेजिनेशन के थ्रू रीडर्स देख पाते हैं. दिस मेक्स हिम रिकॉल एन एक्सपीरियंस ही हैड एंड ही वंडर्स इफ हिज इमेजिनेशन कुड एवर डू justice in describing the whole scenario in a real sense. The next theme of this poetry is nature. और nature romantic poetries की एक खास theme हुआ करती है generally. Here we are shown the interaction between man and nature, which is a major theme for Coleridge, and this theme, nature, is painted all over Kubla Khan as we go from domes to rivers, from gardens to sea, from caves to trees, and sometimes he has focused on human characters as well. A girl is shown with a dulcimer. Sometimes his focus is on natural forces. In fact, it is difficult to get away from this theme, nature, in this poetry. If you are looking for a story, a thought, a moral, an allegory, or any kind of symbolism, you are at a wrong place. It contains no story, no thought, no moral, no allegory, no symbolism. It is just appreciated for its shadowy vision and haunting music. Kubla Khan, I'll say, just is a poem of pure romance. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams.